माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब जी का आगमन हो चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्रीयुत एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री माननीय श्रीयुत देवेंद्रजी फडणवीस, and Srimati Meenakshi Lekhi ji, Honorable Minister of State for External Affairs and Culture, Government of India. Along with them, we have Mr. Sanjeev Bajaj, President CII, Mr. Chandrajit Banerjee, Director General CII, and Mr. Rajan Navani, Chairman CII Council on India at 75. A very warm welcome to all of you. A very good morning, everybody. Good morning. On behalf of the Ministry of Culture, Government of India, Confederation of Indian Industry, and India at 75 Foundation, it gives me, Manasi, immense delight in extending a hearty welcome to all of you, especially the esteemed guests seated on the dais, the distinguished dignitaries, and all you invitees for the second edition of Sankalp Se Siddhi conference with the theme New India, New Resolve, under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Let me begin by calling upon Shri Chandrajit Banerjee, Director General of Confederation of Indian Industry, for the welcome address. Sir. Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji, the Honorable Minister for Road Transport and Highways of the Government of India, Honorable Shri Eknath Shinde ji, the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, the Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Honorable Srimati Meenakshi Lekhi ji, the Honorable Minister for State for External Affairs and Culture of the Government of India, Mr. Sanjeev Bajaj, Mr. Rajan Navani, very, very distinguished ladies and gentlemen, senior government officials who are also present here. Very good morning, good afternoon, and a very warm welcome to Sankalp Se Siddhi conference that we're doing here today. The theme of this inaugural session, ladies and gentlemen, as we celebrate India at 75 and Azadi Ka Amrit Mahotsav, is towards an inclusive, developed India at 100. So we look forward to that 25 years, sustainable infrastructure and future mobility for a clean, green, and an energy-efficient India at 100. So we are indeed extremely pleased that we have such a phenomenal guests of such importance here with us to collaborate between the government, between industry, and other stakeholders as we look at India at 100 from the year of India at 75. We are indeed delighted and honored that we have with us here Shri Nitin Gadkari ji, a person who has always given us phenomenal ideas of how we could work in the industry to look at how we could collaborate with the government, how we could look at an India future on many, many areas spanning not just from transportation, but from green fuels to storage, battery, and many, many, many such new ideas. And we look forward to his talking to us about the future. We are so glad and honored that we have with us the Honorable Chief Minister of Maharashtra here today. And we are indeed most delighted that this is his first public engagement, if I can say, with the industry. We over here in this room, and in this room, sir, Honorable Chief Minister, sir, we have industry from across the country. We have members from Maharashtra
And we have also members from other parts of the country who have come to participate in this conference, which is being held under the aegis of the Ministry of Culture, Mrs. Lekhi. We are also so delighted and honored to have Sri Devendra Fadnavis once again with us at the CII. It has been a privilege for us to have worked under your leadership for years, and we look forward to again working with you and under your guidance. As was said, that this is the second time that this conference is being held on Sankalp se Siddhi. We did the first one in Delhi, and Sri Meenakshi Lekhi ji took her time off to really guide us to have this collaboration between the Indian industry and the Government of India, and the Ministry of Culture under her leadership really led us in terms of seeing how a collaborative framework could be developed as we work towards visioning an India at 2047, that is India at 100, and how different stakeholder consultations could be held. And we are so glad that Srimati Lekhi ji has found time to again travel down from Delhi and she is the continuity, really, if I can say, between the first conference that was held in Delhi a few weeks back and over here now in Bombay. And we look forward to you, ma'am, for your guidance and for your leadership in really taking this stakeholder consultation forward. The Honorable Prime Minister has given us the guidance of during a meeting which we had way back, if I can say, in 2008, when we had approached him and talked about India at 75. And he told us that we will definitely in India at some point in time see how we are able to take forward this huge agenda that we have for the country. And since the last 7 or 8 years, we have seen phenomenal changes, be it in areas like Skill India or Digital India, Smart Cities Mission, Startup India, Niti Aayog's strategic document of 2019, renewable energy leadership, and one can go on and on. But I would not like to stand in the way of many of our great dignitaries that we have here present today, but would like to, on behalf of this entire hall present here, welcome our panel and welcome our guests of honors and chief guests for participating here with us. Ladies and gentlemen, please welcome all this brilliant panel with me. With that, we start the first program of the day, and I'll request the President of CII, Mr. Sanjeev Bajaj, to give his remarks on India at 75 work that has been happening. Morning, friends. Warm personal welcome to Gadkari ji, Shinde ji, Devendra ji, Meenakshi ji. आप सब साथ में आज यहाँ हैं. That gives us tremendous confidence on Sankalp se Siddhi, our celebration of India at 75, but also our preparation for India at 100. India has the potential to be an economy of over $7 trillion by 2030. Doing so, it would emerge as the third largest economy in the world, and it is up to us to make it happen. Within that, Maharashtra can contribute. इस $7 trillion economy जो हो सकती है 2030 तक, उसमें Maharashtra itself can be $1 trillion and retain its tag as the premier investment destination of this country. As the theme indicates, there will be many deliberations, discussions during the day to see how can we build an India that is an inclusively developed India, an India that is not just for the cities, but also for the towns and the villages, an India that is not just for the rich, but for everybody else. An India that doesn't earn only in some pockets, but while it does, it distributes all over, so that we build a new India together. CI believes that the Honorable Prime Minister's vision for Amrit Kal as a period of prosperity for India at 100
will guide us to achieve these landmark objectives. CI's theme for the year, keeping this in mind, is Beyond India at 75, building competitiveness, growth, sustainability, and internationalization. Keeping Amrit Kal in mind, CI has developed a strong agenda for the year to act as a starting point for the coming years. And let me just take you through a few points. The first is skill development. We know this is a very important initiative. CI has 40 model career centers around the country where almost 8 lakh youth have been provided counseling and over 4 lakh have actually been given placements. From these 40, we want to scale this up in this year to 60, take it up by 50%, and we will skill an additional 1.5 lakh youth and facilitate placement of over 2 lakh in the private sector. We will also add 5 multi-skill institutes, taking the total number to 9. And migrant labor facilitation centers are being planned in 4 cities through industry participation. The second area, very important, is technology and startups. The government's landmark policies under Startup India, Stand Up India, have already made India, as we know, the 3rd largest startup nation in the world, with over 70,000 registered startups. To further promote entrepreneurship and startups, CI will set up the CI Incubation Center for Startups at Hyderabad this year. We will also initiate state level, multi-state level startup accelerator programs to support, help new startups and take them to a level where they can then get funding from others. CI also launched Digital Saksham, a project for digital literacy and adoption in the MSME sectors, because they are the ones who need that additional support. This project is being implemented in 7 states, covering 75,000 MSMEs this year, and we will scale it up to 3 lakh MSME over the next 3 years. CI is also instituting a national technology mission covering areas like IP, design, R&D, innovation, and a center of excellence on design and IPR is being planned to provide IP consultancy and training. We think this is very important. It's our Indian brethren that go and create IP around the world, and there is no reason why we should not do that over here. The next area, the third commitment, is on COP26. We know India has taken on a very significant commitment towards net zero by 2070, and we will work on a decarbonization roadmap and sectoral roadmaps to achieve net zero by 2070. CI's India Green Building Council, which we've had for many years, has crossed 8 billion square feet of green building footprint in India, which is the 3rd largest in the world. See, India is no longer a story which is to come. It is a story which has already come, and we have to see how to take it forward together. And we now propose to target 10 billion square feet of green building footprint in this, taking it to 10 billion in this financial year. With these initiatives, CI is all set for India at 100. We look forward to the valuable comments and advice from our esteemed guests and look and work together for our engagement in Amrit Kal. Thank you. Thank you, Mr. Bajaj, for putting CII's varied activities and initiatives in a nutshell for all present. And now I invite the guest of honor, Srimati Meenakshi Lekhiji, Honorable Minister of State for External Affairs and Culture, Government of India, for her address. Thank you very much, Mr. Bajaj, Mr. Banerjee, and also Mr. Novatia, Eknath Shinde ji, Chief Minister of Maharashtra, Nitin Gadkari ji, Cabinet Minister, Roads and Transport, Shri Devendra Fadnavis ji, Deputy CM Maharashtra. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to this morning. And when we are discussing Sankalp से सिद्धि तक, तो पहले तो हम लोग तय कर लें कि
अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को डिक्लेयर किया, उसके पीछे मंशा क्या थी? What was the theme behind this declaration? The theme behind declaration was that let the coming generations learn the history of India, take pride in who they are and the kind of struggle this country has gone through, and stop taking things for granted. And it was this intention which was activated by this declaration. And especially when I'm talking to a business group, of course the conversation is going to be around economic developments, because through economic development only you're able to achieve the Siddhi. जैसे कहते हैं कि बिना पेट भरे तो आप भजन भी नहीं कर सकते, so बिना आर्थिक नीति के तो आप सिद्धि भी प्राप्त नहीं कर सकते. So for achieving well-being of all, economic development becomes the basis, one of the main important verticals of achieving development. But equally important or more important is change of mindset, and which is the change in thought process. So until and unless we come across we come across as confident beings, we come across as people who know what our goals are, where we wish to go, what we want to achieve. Until and unless that clarity exists, even economic development will not happen, and no economic development can make you developed until and unless you have the right thinking to carry on that developmental process. Just to share a little bit of data, when India got independence in 1947, the average age of an Indian was 21 years. Now imagine average age being 21 years. From there we have come to 70 plus years, 72 or 78. So that means this is a parameter, this is symbolic, but definitely a fact which throws light on how in 47 years we have achieved a part of equality, well-being of humans, nutritional levels, medical facilities, and development around extending a human life. This is an indicator. A human life is an indicator of developmental process, and which will obviously have implication on every other aspect. A simple thing like education. Could you have achieved all this without education? The literacy rate at that time was for men 25% and for women 7 point some odd percent. तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, 25% लोग अगर किसी देश में पढ़े लिखे होंगे और उस देश का पूरा एजुकेशनल सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया होगा और पूरा खराब लूटपाट करके सब बर्बाद किया गया होगा, तो उस देश की तरक्की क्या होगी? कोई सोच समझ वाले लोग ही नहीं होंगे तो तरक्की कैसे होगी? और उस सब से हटकर आज हम 84-85% पुराना डाटा के हिसाब से भी तो पुरुषों के लिए है और 70.28-71% के आसपास महिलाओं के लिए है. तो अब सिद्धि अगर हमने आज 75 वर्ष पूरा होने में, जिसमें कुछ ही दिन बाकी हैं, हम अगर एक रिव्यू करें कि हमारे इंडिकेटर्स उस समय क्या थे और हमारे इंडिकेटर्स आज क्या हैं, सड़कों का जाल पहले क्या था, आज क्या है, कितने जहाज़ थे, कितने जहाज़ ख़त्म हुए, बल्कि जहाज़ में तो मैं कहूँगी कि हमारी क्या क्षमता थी और कहाँ हम पहुँचे हुए हैं अभी, और बिना जहाज़ी बेड़े के क्या आप दुनिया का कॉमर्स या दुनिया की नेवल पावर को संभाल सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं मुंबई में खड़ी हूँ, और ऐसे देश में जहाँ पर पहली महिला जो शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन की चीफ थी वो इस देश में थी. वो यहाँ अमृतकाल के महोत्सव पे उनको भी याद करने का मौका है कि इस देश की क्षमता क्या थी. आज आपके बीच में एक और जिक्र करना चाहती हूँ शिपिंग संबंधित, कि भारत की शिपिंग इंडस्ट्री, इवन व्हेन ब्रिटिश रूल्ड अस ओवर, व्हेन दे वर कंट्रोलिंग थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी आर बिजनेसेस, तो
तो उन्हें अपने देश में लंदन में एक पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास करना पड़ा और उस एक्ट के मुताबिक उनको ये कहना पड़ा कि भारत की शिपिंग इंडस्ट्री को ख़त्म करो, नहीं तो हम उनके बराबर की कॉम्पिटेंस नहीं रखते. This was an act passed in the British Parliament. I don't think many of us knew about it or know about it. जिसकी जानकारी अभी भी बहुत लोगों के बीच में नहीं है. तो भारत की शिपिंग इंडस्ट्री उस ज़माने में भी इतनी अच्छी थी, जबकि उससे पहले और विदेशी आपके ऊपर हुकूमत कर चुके थे, कई सौ सालों तक आपके ऊपर अन्य राज रहे, और आज आज़ादी के 70-75 साल बाद हमारी शिपिंग इंडस्ट्री की क्या हालत है, मुझे लगता है कि रिव्यू करना चाहिए. और उससे जुड़ा हुआ विचार भी हमारे सामने आना चाहिए कि ये हालत पहुंचाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं और इसको बेहतर करने के लिए हमको क्या क्या करना है, ये भी विचार हमको करना होगा. क्योंकि संकल्प से अगर हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो सिद्धि के लिए अगर हमारे इकोनॉमिक गोल्स हैं, हमारे सिक्योरिटी के गोल्स हैं, हमारे फूड सिक्योरिटी के गोल्स हैं, तो शिपिंग एक उसमें बहुत बड़ा साधन है. और उस साधन में हमारी क्या हालत थी, आज कहाँ है और आगे हम कहाँ जाना चाहते हैं. क्योंकि बजाज साहब ने कहा कि आप अपनी विचार सामने रखें और खुल के ये विचार सामने आने चाहिए, गैप्स आइडेंटिफाई होने चाहिए ताकि उन गैप्स की हम अच्छे से भराई भी कर सकें. 75 वर्ष पे हमको आज ये भी याद करना होगी कि दुनिया में जब गेहूं की खरीद के लिए और तंगी के लिए और भोजन संबंधित जो इशू पूरी दुनिया में चल रहा है, तो ऐसे में इंडिया इज़ वन ऑफ द प्रोवाइडर्स in terms of aid, in terms of help, in terms of extending government to government support. India has come up as one country. Now imagine this was one country which till 70s was importing wheat. And I still remember my childhood. एक लाल गेहूँ आता था ऑस्ट्रेलिया से और उसको कहा जाता था कि ये आटा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. और तेल की शॉर्टेज अभी भी कभी हो जाती है. दालों की शॉर्टेज तो 2014 के बाद तक रही है. सो नाउ वी हैव अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी, whether it comes to pulses, it comes to grains, it comes to feeding a country of 130 million people is no mean achievement. India has done sufficiently well in this field, but what more can be done? Because today we have all come to understand that millets probably is the meal of the day as compared to cereal. So what are we going to do about increasing millet production? What are we going to do about increasing our self-sufficiency in edible oil? What are we going to do about increasing our self-sufficiency in pulses, in horticulture produce? I think that's what Sankalp se Siddhi tak is all about. That let us by and by in every field look at our achievements, decipher what made us achieve what we have achieved, and also decipher where we wish to be at 100, set the goals, and then try and achieve those goals. When it comes to ICT, not way back, just 20 years ago, what was our condition? Where have we reached? And today, the Government of India's project is to connect 2.25 villages of the country through BharatNet. And we have done a great job by connecting more than 1.5 lakh villages and above. When it comes to data, so data has helped achieve India transparency of governance, and execution processes have been smoothened up, and all the corrupt practices which were being engaged in at every level have disappeared to a large extent. UPI has made us self-sufficient in transaction. Today India is one country which has the highest level of transaction. 1 billion plus is what we target in coming years, is what India wants to achieve. So I'm sure we've set the target right, we've got the ball rolling, we are on the right track, but let us come about the gaps and identifying the gaps in every field, how we can establish better systems, how we can make
not because Mr. Gadkari is sitting here, but I definitely feel when it comes to road construction in the country, he is definitely the man to go to, who's created a transport network without which no logistic chain will be completed. And when we look at the geo-strategic politics, we are meeting when Mr. Abe, the former Prime Minister, has been shot. The Japanese Prime Minister has been shot. So every day, situation geopolitically is changing. And in those circumstances, which are very, very challenging, especially keeping the COVID in mind, especially keeping what's happening at other places and especially in our neighborhood, the challenges are immense. But these challenges are also an opportunity, because the world is looking at India, and if we fail to take our place which the world wants to give us, if the time wants to give us, circumstances want to give us, then the fault will entirely be ours and not anything else, and not anybody else. तो जब पूरी दुनिया को अपना सप्लाई चेन मैकेनिज्म को डाइवर्सिफाई करना है, और उस सप्लाई चेन मैकेनिज्म में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और उन सबको एक भरोसेमंद साथी की ज़रूरत है, उन सबको एक रिलायबल अस्तित्व की, स्थायित्व की ज़रूरत है, और वो रिलायबल अस्तित्व और स्थायित्व जो है केवल और केवल भारत दे सकता है, अपनी मूल कारणों से, रिसोर्सेज की वजह से, ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से, और एक टेम्परामेंट की वजह से। हम लोगों का जो टेम्परामेंट है वो बहुत आक्रामक नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं, विश्वास वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं और लोकतांत्रिक लोग हैं। तो ऐसे में जब भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, क्या उस चैलेंज को रिसीव करने के लिए हम तैयार हैं? हमें अपनी तैयारी अगर हमने ठीक नहीं की तो भारत 100 वर्ष में कहाँ पहुँचेगा? और 100 भी किसी भी देश के लिए कोई बहुत लंबा समय नहीं है। मतलब वी आर स्टिल अ वेरी यंग नेशन। इन मॉडर्न टाइम्स वी आर अ यंग नेशन, वी आर अ ओल्ड सिविलाइजेशन बट अ यंग नेशन। As a young nation, it's our responsibility, it's our duty that we set our best foot forward, because what India will achieve at 100 will be decided by the Sankalp we take at 75 and how we make a blueprint for achieving our achievements at 100. And the idea behind this entire exercise, according to Prime Minister, is very simple, that let Indians learn from the sacrifices of the patriots who brought freedom to this country and be inspired by their actions so that they all learn to live for their country. The challenges today may not be to die for the country, the challenge today may be to live right for the country, whether it's Swachh Bharat Abhiyan or it's Beti Bachao, Beti Padhao, where at G7 meeting, Prime Minister made a categorical statement that India has gone beyond empowering women. Today, India is looking at women-led empowerment. And that is what describes that when it comes to businesses, we have to go beyond ease of doing business and turn it into cost of doing business. Turn it into cost in terms of time, single window clearance, and all this is achievable so far as India is concerned only and only when the industry and government partners in the aims. Industry and government partners in achieving the goals. Industry is as much a stakeholder as the government, and no government does business, government helps businesses do business. That's what our commitment is. With these words, thank you very much. Jai Hind. Thank you, ma'am, for sharing your thoughts. And now I invite our guest of honor, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, to share his thoughts on this significant occasion. आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री और जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर चैंपियन के रूप में हम लोग जानते हैं, ऐसे आदरणीय नितिन गडकरी जी,
महाराष्ट्र के नूतन मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम करने वाली आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, सीआईआई के प्रमुख श्री संजीव बजाज जी, चंद्रजीत बनर्जी, राजन नवानी जी, यहाँ उपस्थित सीआईआई के सभी मेंबर्स, देश के अलग अलग भागों से यहाँ पर पधारे हुए सभी बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री के चैंपियंस, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सभी को इस अमृत काल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और सीआईआई का आभार व्यक्त करता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही शिंदे जी ने और मैंने शपथ ली और हमारी शपथ के बाद हमारा पहला पब्लिक कार्यक्रम ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। तो पहला कार्यक्रम ही अमृत काल का कार्यक्रम हो, ये भी अपने आप में एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस अमृत काल को अ मूवमेंट टू रिफ्लेक्ट इस प्रकार से हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी है। हम क्या थे, हम क्या है और हम कहाँ जाना चाहते हैं। इस देश की गौरवशाली परंपराएं, उसका हमें अभिमान हो। जो गलतियां हुई है उसकी भी जानकारी, उसकी भी अनुभूति हमको हो और आगे जहां पहुंचना है उसका एक रोड मैप भी हमारे सामने हो। इसलिए इस अमृत काल का उपयोग इंडिया एट 75 हमने किया और इंडिया एट 75 में रिफ्लेक्ट करते हुए इंडिया एट 100 की हमारी परिकल्पना क्या होगी, इसका भी विचार हम मिलकर कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान में जब भविष्य का विचार होता है तभी प्रगति होती है। आज जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर तो हम सब लोग काम करते ही हैं, किंतु जब तक संकल्प नहीं होता तब तक प्रगति नहीं होती। और कोरा संकल्प करके वो केवल एक स्वप्न होता है, लेकिन उसकी ओर जाने का रोडमैप तैयार करके जब संकल्प को हम सिद्धि में परिवर्तित करते हैं तभी स्वप्न पूर्ति की अनुभूति हम सभी लोगों को मिलती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज का कार्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और विशेष रूप से अभी जिस प्रकार से मीनाक्षी जी ने बताया कि हम सभी लोग एक ऐसी कगार पर खड़े हैं जहां पर एक छलांग हमने लगाई है और बहुत ऊंची छलांग की तैयारी हो चुकी है। एक साथ मिलकर भारत हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अगर आगे बढ़ेगा तो संजीव जी ने जो बात कही 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, मैं ऐसा मानता हूँ बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। और संजीव जी आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र तो भारत की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस है, ये इंजन है, ये ग्रोथ इंजन है। और हमने 2015 में ये संकल्पना की थी कि 2030 तक
हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचेंगे। और आज फिर एक बार उस संकल्प को मैं दोहराता हूं, हमारे नूतन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र ये 2030 से पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लेड डेवलपमेंट एक मॉडल हमने तैयार किया है। ये तीनों चीज़ों को साथ में लाकर हम लोग इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करेंगे। और एक ग्रोथ का जो मॉडल हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की बात तो सालों से करते हैं, पर आज इंक्लूजन दिख रहा है। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, एज यू हैव राइटली सेड, इज नॉट फॉर हैंडफुल फ्यू, इट्स ए इंक्लूसिव मॉडल जहां पर समाज के आखिरी व्यक्ति को भी हम लोग इसमें समाहित करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, और उसकी प्रगति के साथ, उसकी उन्नति के साथ ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हम लोग पूरा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हमने बहुत काम शुरू किया है। नितिन जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर एक नेटवर्क रोड्स का तैयार किया और तैयार हो रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग एयरपोर्ट से, अभी न्यू मुंबई एयरपोर्ट तेजी से हम लोग उसको पूरा करना चाह रहे हैं। अलग अलग शहरों में मेट्रो का नेटवर्क हम देख रहे हैं। मुंबई में मेट्रो का नेटवर्क आज फिर एक बार हम तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं। कभी कभी हमारे विकास में भी थोड़ी राजनीति हावी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी आगे जाकर हम लोग इस काम को पूरा करना चाहते हैं, सही समय पर काम पूरा करना चाहते हैं। आज बुलेट ट्रेन जो एक प्रधानमंत्री जी का सपना है, किन्हीं कारणों से महाराष्ट्र थोड़ा पीछे रह गया। गुजरात ने बुलेट ट्रेन के मामले में काम बड़ी तेज़ी से किया, पर मेरी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई और हमने तय किया कि हम इसको कोप अप करेंगे, क्योंकि ये केवल एक बुलेट ट्रेन नहीं है, एक ट्रांसपोर्टेशन की एक नई शुरुआत है। एक बुलेट ट्रेन जब बनेगी तो उसके चलते जो इकोसिस्टम हम तैयार करेंगे, पूरे देश को मुंबई के साथ जोड़ने का प्लान हम बुलेट ट्रेन के माध्यम से कर सकते हैं। इतनी क्षमता इस एक बुलेट ट्रेन में, इसलिए इसको पूरा करना हो, चाहे देश का सबसे बड़ा पोर्ट, आज तो जेएनपीटी सबसे बड़ा पोर्ट है, लेकिन जेएनपीटी से भी डीप ड्राफ्ट का और सबसे बड़ा पोर्ट ये महाराष्ट्र में तैयार करने की बात हो। नितिन जी जब मिनिस्टर थे, हमने उनके साथ एक एमओयू किया था। किन्हीं कारणों से कुछ समय उसमें कुछ एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स थे, उनको सबको हमने दूर किया, और अब तो भारत सरकार ने ये तय किया है कि भारत सरकार उसको टेकअप करेगा और पोर्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का काम शिंदे जी और हम मिलकर करेंगे। और हमने तय किया है, क्योंकि नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग जब शिंदे जी ने और हमने मिलकर किया, तो एक नया मॉडल हमने दिखाया कि जब हम लोगों को साथ में लेते हैं तो विरोध कम होता है। 700 किलोमीटर के रोड का 100% लैंड एक्विजिशन 9 महीने में हमने पूरा किया, और आज रोड शुरू होने की कगार पर है। उसका एक फेज़ जल्दी हम लोग लोगों के लिए उसको ओपन करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे पोर्ट का डेवलपमेंट हो, तो एक एक आदमी की बात को सुनकर उसको उसमें इंक्लूड करके, पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी, ऐसा हर व्यक्ति को इंक्लूड करके हम उसको पूरा करेंगे। और मेरा विश्वास है कि ये पोर्ट जिस दिन हम लोग तैयार कर पाएंगे, उस दिन
ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, ये सपना बहुत तेज़ी के साथ हम पूरा कर पाएंगे। आज हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट महाराष्ट्र में हम कंप्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये क्लीन फ्यूल पर ले जाए, और उसको एक हम लोग उसकी फेजेस भी तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पर भी कन्वेंशनल फ्यूल का इस्तेमाल न हो, इस प्रकार का भी प्रयास हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने महानगरों से की है। महानगरों में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्लीन सिस्टम में परिवर्तित कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसको भी हम लोग अल्टरनेट फ्यूल की ओर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे एक जो COP22 की बात की, तो उसके जो हमारे जिन चीज़ों तक हमको पहुंचना है वो पहुंचने में मदद तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई इकोसिस्टम भी उससे तैयार होगी। और मैं CII को फिर एक बार इनवाइट करना चाहता हूँ। आपके साथ मिलकर महाराष्ट्र ने बहुत काम किया है, और आने वाले दिनों में चाहे वो EV हो या फिर जो ये सारे सेक्टर में जो अलग अलग इनोवेशन हो रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र को लीडर बनाने के लिए, महाराष्ट्र लीडर तो है ही, पर उसको और आगे ले जाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम CII के साथ बैठकर जो भी पॉलिसी डेफिसिट्स है उसको दूर करेंगे। जो भी आप चाहते हैं, नई पॉलिसी चाहते हैं, पॉलिसी में चेंजेस चाहते हैं, वो सारे हम करेंगे। और आपके माध्यम से देश भर के और दुनिया के इन्वेस्टर्स को हम इनवाइट करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ना चाहता है, और उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो महाराष्ट्र देना चाहता है। विशेष रूप से हमारी जो MIDC है, वो MIDC हमारा वन स्टॉप शॉप है, कि जहाँ पर हम लोग उसके माध्यम से जो भी इंसेंटिव्स है वो इंसेंटिव्स भी हम लोग बिल्कुल देना चाहेंगे। तो आप आइए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र शुड बी द फर्स्ट स्टेट कि जिसको हमने इस प्रकार से 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोगों ने अचीव किया है। और नितिन जी का जो सपना है कि कंप्लीट हम लोग EV पर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए, तो ये सारा इकोसिस्टम हम महाराष्ट्र में तैयार करना चाहते हैं। और विशेष रूप से एक जिसको हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि एक स्टार्टअप कैपिटल तो महाराष्ट्र है ही। कई बार लोगों को लगता है कि बेंगलोर है, हैदराबाद है, लेकिन व्हेन यू गो टू द एब्सोल्यूट नंबर्स देन यू विल अंडरस्टैंड दैट द स्टार्टअप कैपिटल इज महाराष्ट्र। लेकिन वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी हम लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से भी आप लोगों का जो सहकार्य है वो आने वाले दिनों में हम लोग ज़रूर लेंगे। इससे पहले आप लोगों के साथ बहुत क्लोजली हमने वर्क किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि CII जैसी जो हमारी संस्थाएं हैं वो राज्य सरकार के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, और उसका एक हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि आज जब हम लोग इंडिया एट 100 इसका विचार कर रहे हैं, तो ये जो एक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और तंत्रज्ञान, इसको तीनों को साथ में लेकर, टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर ये जो रोड मैप तैयार किया है, आप सभी को उस रोड मैप का स्टेक होल्डर मैं मानता हूँ। और हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का पावर हाउस महाराष्ट्र ये आगे बढ़े, इस दृष्टि से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं आज के इस मौके पर आपने इस बहुत अच्छे कार्यक्रम से हमारे भी कार्यकाल की शुरुआत की, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने अपने बहुमूल्य विचारों की सौगात हमें दी, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एंड नाउ आई विल इनवाइट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर श्री एकनाथ शिंदे जी, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, टू एड्रेस दिस ऑगस्ट गैदरिंग। आज़ादी का अमृत महोत्सव, संकल्प से सिद्धी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित केंद्रीय रोड ट्रान्सपोर्ट, हायवे खूप अगदी मजबूत असलेले मंत्री कामामुळे
आमचे मार्गदर्शक नितीन गडकरी साहेब आणि दुसरे आमचे मार्गदर्शक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, श्रीमती मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी जी लेखी जी, संजीव बजाज जी, चंद्रजीत बॅनर्जी, राजन नवानी, सर्व व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर, थोडं मराठीत, सगळ्यांनाच मी मनापासून आज या ठिकाणी धन्यवाद देतो आणि CIIचे सर्व सहकारी, सर्व अधिकारी, पत्रकार बांधव भगिनी आणि सर्व मित्रांनो, संकल्प सिद्धी हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे, CII आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचं देखील मी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. आज आपण भारताच्या 75व्या वर्षात आहोत आणि स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय आणि पुढचे 25 वर्ष आपला संकल्प आपण कसा आता घेऊन 25 वर्षामध्ये आपल्याला काय काय करायचं आहे याचा एक संकल्प ते सिद्धी हा एक कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित झाला है. सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर एक बार केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब को धन्यवाद देता हूँ. उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ इस महाराष्ट्र की धरती पे. हाल ही में हम दोनों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ली हुई है और जैसे ही शपथ ली गई तुरंत हम लोग ने काम शुरू कर दिया. कल ही केंद्र सरकार की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपेक्स अथॉरिटी की बैठक थी. उसमें निर्मला सीताराम जी, उनके साथ मीटिंग हुई और इस मीटिंग में महाराष्ट्र में बन रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को तेज़ी देने की बात भी वहाँ पर हमने रखी थी और 3-4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है मुंबई दिल्ली, मुंबई नागपुर, मुंबई बेंगलोर और बल्क ड्रग पार्क हो, टेक्सटाइल पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, इसकी भी बात कल मीटिंग में रखी और केंद्र सरकार ने पूरी तरह हमें सहयोग देने की बात की है. क्योंकि आप सब जानते हो ये सरकार जो गठित हुई है ये हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली सरकार है और उसके लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद दिया हुआ है और गृह मंत्री जी ने भी दिया है और गडकरी साहब का तो है ही है, वो हमारे ही है, नड्डा जी भी है. उन्होंने इस शिवसेना भाजपा की सरकार को आशीर्वाद दिया हुआ है और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि इसमें यहाँ बैठे हुए देवेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और निश्चित रूप से पिछले 5 सालों का उनका जो अनुभव है ये अनुभव इस राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए कारगर साबित होगा, मददगार साबित होगा. वैसे हमारी दोनों की अच्छी खासी दोस्ती है, मैं उनके मंत्रिमंडल में काम कर चुका हूँ और इसलिए मैंने अभी गडकरी साहब को भी कहा
उन्होंने भी मुझे एक बात कही, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा सब ठीक है, लेकिन आपका सहयोग हमें जरूर लगेगा। बोले बिल्कुल, पहले भी किया है और ज़्यादा करूँगा अभी। गडकरी साहब की पहचान आपको सबको पता है कि जब 95 में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार थी इस राज्य में, तो उन्होंने मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे बनाया, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा थी कि 7-8 घंटे 10 घंटे लगते पुणे मुंबई पुणे मुंबई मुंबई पुणे। तो मेरे ख्याल से देश में पहला सुपर एक्सप्रेस था वो, पहला वो उन्होंने किया। 55 फ्लाईओवर मुंबई में किए। तब लोग बोलते थे ये क्यों बना रहे, इसकी क्या ज़रूरत है। अब 55 भी कम पड़ रहे हैं। वो बहुत दूरदृष्टि वाले नेता है, तो उनको पता था तभी आगे क्या करना है, आगे क्या किसकी ज़रूरत है। और आज हम लोग देखते जानते हैं, मुंबई पुणे के वजह से, एक्सप्रेस के वजह से आज डेली 2-2.5 घंटे में हम लोग मुंबई से पूना, पूना से मुंबई आ सकते हैं। और आज पुणे में वहाँ सर्विस इंडस्ट्री हो गई, आईटी इंडस्ट्री हो गई, रियल इस्टेट बड़ी डेवलप हो गई। पूरी वहाँ पर डेवलपमेंट इतने ज़ोर से हो गई कि लोग यहाँ पर आना जाना रोज़ का डेली अप डाउन करने लगे। अब मैं वहाँ पर एक टनल बना रहा हूँ, गडकरी साहब को पता है, वो एक टनल खालापुर से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट तक। उस टनल, वो टनल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे विड्थ वाला टनल है। और वो जब जल्दी पूरा हो जाएगा, 20-25 मिनट पहले मुंबई से पुणे पहुंच जाएंगे हम, और फ़ायदा हो जाएगा। समृद्धि हाईवे भी, जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो भी एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि उसके वजह से सिर्फ हाईवे नहीं है, वो 700 किलोमीटर की दूरी, 15 घंटे की दूरी 6 से 7 घंटे में पूरी करेंगे हम लोग। उसको नाम भी हम लोग ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का दिया हुआ है। ये देवेंद्र जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं उसमें मंत्री था, और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी मुझ पर देवेंद्र जी ने दी, और मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाने की कोशिश की है। और आज पूरी तरह वहाँ डेवलप हो जाएगा। सभी रीजन जो है, मराठवाड़ा, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, सब डेवलप हो जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ आ रही है। वहाँ नोड, हम लोग 20 नोड बना रहे हैं। पूरी तरह वहाँ पर गेम चेंजर, लोगों को इतनी समृद्धि हो जाएगी, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे इस समृद्धि हाईवे की वजह से। मुझे पता है कि जिस राज्य के, जिस देश के रोड अच्छे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है। आज गडकरी साहब, पहले जब सरकार थी 12 किलोमीटर पर डे रोड बनाए जाते थे। गडकरी साहब के कार्यकाल में 12 से 36 किलोमीटर रोड पर डे हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे याद है, एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक कोट था, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मतलब उनके रोड अच्छे थे करके उनकी श्रीमंती थी, और इसलिए गडकरी साहब वो इस तेजी से सब रोड बना रहे। हमारे राज्य के ऊपर भी उनका ध्यान है। हमको भी वो CRF और नेशनल हाईवे और MSRDC PWD को भी बहुत से कहा, उन्होंने फंड्स दिए हुए, आगे और ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सरकार से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ चुकी है। हम लोगों ने जो सरकार स्थापित की है, इससे जो आम पब्लिक है, जो सामान्य मानुष है, उसको अपेक्षा बढ़ गई है। और इसलिए
गडकरी साहब निश्चित रूप से हमें साथ देंगे। महाराष्ट्र ये जो संतों की, वीरों की भूमि है और महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन रहा है हमेशा। यह विकास इतनी तेजी से इस महाराष्ट्र में हो सकता है, वैसे पोटेंशियल है, स्कोप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस राज्य में पहले बहुत से एमओयू आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष काम, प्रत्यक्ष जो इंडस्ट्री यहाँ आने के लिए जो भी सरकार की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए, ये सरकार, हमारी सरकार पूरी तरह से देगी। क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करना, इसको हम लोग ने प्राथमिकता दी है। और निश्चित रूप से यहाँ पर सभी तरह की, आप जैसे हमारे देवेंद्र जी ने कहा है कि सीआईआई के साथ हम मिलेंगे, बैठेंगे, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इस राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं और इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, निश्चित रूप से ज़रूर वो किया जाएगा। आज हम लोग जानते हैं इस राज्य का जीडीपी भी सबसे ऊपर है, निश्चित रूप से एक्सपोर्ट भी 22% है, एफडीआई जो है वो भी 26% है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्किल रिपोर्ट है 2021 का, इसमें जो हमारे राज्य में जो टैलेंट है वो भी 1 नंबर पे है। और निश्चित रूप से यहाँ के लोग बहुत होशियार भी है। हम लोग जानते हैं, कभी पेपर में पढ़ते, न्यूज़ में देखते, हमारे महाराष्ट्र का एक कोई इंजीनियर हो या कोई आदमी हो प्रदेश में जाके अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब जो है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसका पूरा यहाँ यूटिलाइज करेंगे। नीति आयोग का भी रिपोर्ट है, इनोवेशन में भी हम लोग महाराष्ट्र ऊंचाई पे है। ये सब जो है गुड गवर्नेंस में है, सब यहाँ पर जितना भी है, हम लोग निश्चित रूप से आपको एक ही कहेंगे हम लोग कि साथ में मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इस राज्य में हर समाज के हर घटक को, किसान हो, किसानों के लिए हम लोग ने कहा था कि किसान आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र हम करेंगे। पिछले 2-3 दिनों में हम लोग ने कई ऐसे डिसीजन लिए, कल भी बैठक होगी, कैबिनेट में बैठक हो गई, उसमें भी हम लोग निश्चित रूप से जितना भी इस राज्य के लिए कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे हम लोग। और ये महाराष्ट्र जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद है। मैंने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कॉरिडोर में अब आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब भी जैसे हमारे फडणवीस साहब ने कहा है कि उसे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी अभी गडकरी साहब ने भी मुझे कहा है, आपलं ते ह्याच्यामध्ये ना ठाणे आणि पुण्यामध्ये टॅक्सी रिक्षा इथेनॉल अपना प्रोडक्ट है, बराबर कि नहीं। तो अभी पेट्रोल का महंगाई बहुत बढ़ रही है, आधे पैसे में इथेनॉल मिलता है, लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों का आह्वान किया था कि उन्होंने उनका टैक्स कम किया था पेट्रोल डीजल पे, लेकिन कई राज्यों ने कम किया, महाराष्ट्र ने नहीं किया था। उसके बारे में भी हम लोग दोनों मिलकर ये जो वैट है उसको कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, ताकि इस राज्य के सभी जो वर्ग है उनको इसमें फ़ायदा हो जाए और देश की जो प्रगति है, प्रगति को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, इसकी कोशिश हमारी होगी। मैंने कल शेंद्रा बिडकिन के बारे में जानकारी ली। शेंद्रा बिडकिन तो हमारा तैयार हो गया, जो औरंगाबाद संभाजी नगर में है, और खुद उस प्रोजेक्ट के बारे में वो वर्ल्ड क्लास है। वहाँ पर 3 लाख रोजगार मिलेंगे,
लोगों को, और ख़ुद उसको प्रधानमंत्री जी ने उसको अप्रिशिएट किया है और देश को भी वो प्रकल्प समर्पित किया। ये भी हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। CII जो ये पहल की है इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, उसको भी निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, साथ में मिलेंगे। इसमें जो हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम का भी आयोजन भारत सरकार की ओर से किया हुआ है, उसे भी हम ध्यान में रखते हुए सभी के सहयोग से हर घर तिरंगा, जो हमारे 2-2.5 करोड़ घर है, एक देश का अभिमान है, स्वाभिमान है, उसे हम लोग जागरूक करेंगे। और इसमें भी CII का सहयोग हम चाहते हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी आगे बढ़ाएंगे। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, गडकरी साहब को मुझे सुनना है क्योंकि उनसे भी कुछ लेना है हमें। तो आणि आम्ही नवीन सरकार स्थापन केलेलं आहे, तर आपलं सहकार्य आम्हाला साहेब पाहिजे। तुम्ही नक्की देणार, तुमच्या बाजूला देवेंद्रजी बसलेले आहेत। त्यामुळे शेवटी सर्वसामान्य लोकांचं हे सरकार, सर्वांनाच न्याय देणार सरकार, शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, समाज के सभी वर्ग को बढ़ावा देने का काम हम लोग करेंगे। और इसमें अहम भूमिका जो है इंडस्ट्री की रहती है। इंडस्ट्री जो पिछले कई सालों में जो परिस्थिति बदल चुकी है, उसमें हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री दूसरे स्टेट में गई है, वो क्यों गई, इसके भी कारण जो है हम उसके ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनको जो भी सुविधा है वो सुविधा देने का काम राज्य सरकार निश्चित रूप से करेगा। इतना ही मैं इस वक्त कहता हूँ। और मैंने कहा है कि हमारी सरकार शिवसेना भाजपा की सरकार बनी हुई है और लोगों की अपेक्षा काफ़ी है हमारे से। फिर एक बार मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार हमारी गार्जियन सरकार है और प्रधानमंत्री जी ने भी हमें आशीर्वाद दिया है शपथ विधि से पहले कि पूरी तरह पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार आपके साथ है, राज्य के विकास के लिए कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। ऐसी बात खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कही है। और इसलिए हम लोग सब मेहनत करने वाले लोग हैं, 24/7 काम करने वाले लोग हैं। आज भी हम लोग, मैं मुख्यमंत्री के हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ। अभी देवेंद्र जी को तो पहले अनुभव है, वो तो बिल्कुल एकदम पूरी तरह सीजनड है। तो निश्चित रूप से सरकार जो इंडस्ट्री हो या किसान हो, कोई भी वर्ग हो, उसके लिए जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने की कोशिश हम लोग करेंगे। और हम लोग, आपको पता है कि फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं और इसलिए जैसे गडकरी साहब ने पूरे देश में एक उनका नाम है, इंफ्रा मैन नहीं बोल सकते, सुपरमैन बोलना पड़ेगा। तो ऐसे गडकरी साहब भी हमारे साथ में हैं और इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगा। इस देश को भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे और ये देश भी हम सब लोग मिलकर एक सुपर पावर बनाएंगे। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के इस अहम अवसर पर आपने उपस्थित सभी को संबोधित किया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। Now, ladies and gentlemen, we will play a short film. Kindly take a look at the screens. There are followers
leaders, there are leaders, and then there are visionary. Taking people and society to where they ought to be rather than where they want to be is what separates a visionary from a mere leader. This rare quality is what sets apart Nitin Gadkari, Minister of Road Transport and Highways, from many of his ilk. Born in 1957 into a free-thinking agricultural family, Nitin Gadkari at heart has always been a social worker inspired by the RSS founder KB Hedgewar's ideals of humanity and nation building. Taking off as a Minister of the Public Works Department in 1995, Nitin Gadkari made groundbreaking changes in the speed the city of Mumbai traveled. So impressed was the then PM Atal Bihari Vajpayee ji with Gadkari ji's performance as PWD Minister that he offered him a responsibility of weaving road nets in the whole of rural India. The outstanding Swarnim Chaturbhuj Yojana, of which Shri Gadkari ji was the chairman, is the culmination of these efforts. 55 flyovers dotting the city have made commuting in Mumbai much easier than ever before. The foundation for the magnificent Bandra-Worli Sea Link was also readied during this time. The jewel in the crown of Maharashtra, India's first expressway, the world-class Pune-Mumbai Expressway, is also a futuristic project imagined and brought to fruition by Nitin Gadkari. Connecting over 13,000 unconnected villages with an all-weather $100 million project is another feat accomplished by this far-sighted visionary. Nagpur, his hometown, has seen first of its kind double-decker bridge, an innovative beautification of flyover using local artists and painting of great political and social leaders was added attraction. Ajni Intermodal Station will have connectivity between long-distance buses, city buses, railways, metro and indirect link with city airport. Nagpur Broad Gauge Metro, which is a commuter rail project planned for Nagpur city and extending up to adjacent areas of Wardha, Narkhed, Ramtek, Bhandara and Chhindwara. World-class institutions like IIT, IIM and AIIMS emerge and thrive under his watchful gaze. This is in addition to the over 1,000 Ekal Vidyalayas that go a long way into molding the future tribal generations. Performing over 10,000 successful heart surgeries is another stupendous achievement in his illustrious career as a warm-hearted do-gooder. The city of Nagpur is the first city to explore alternative biofuels for transport. These include bio-CNG buses. His innovative idea of India's first of its kind CNG-run tractor has proved to be farmer-friendly, cost-effective and helping in reducing air pollution. In a historic push for biofuels, Gadkari ji is introducing flex engines which will run on 100% ethanol, directly providing additional income to farmers and the agricultural sector. Sanskritik Mahotsav, motivating local artists to go nationally. Krida Mahotsav, supporting local sportsmen to showcase their abilities and motivate them to go nationally and on Olympic level. Projects like AgroVision are helping farmers with latest technologies and practices. His idea of using sewage water for power generation, use of ethanol as fuel have added a whole new dimension to the city's development program. As India's current Minister of Road Transport Highways, he has re-energized the whole sector with his clear vision. With more than 40,000 kilometers of national highways constructed in the last 7 years, 60,000 kilometers of new roads under his supervision are being constructed. The speed of road construction from a mere 3 kilometers in 2014 has grown to 40 kilometers in 2021. The dazzling Delhi-Mumbai Expressway has set 4 new world records with 12,500 cubic meters of concrete being laid down on the 4-lane stretch of 25.4 kilometers. These world records are as follows: highway construction rate at 37 kilometers per hour, construction of 2.5 kilometer long 4-lane concrete road near Vadodara at Delhi-Mumbai Expressway in 24 hours, laying down of 26 kilometer long bitumen road at Solapur-Bijapur section of NH52 in 21 hours. A 50% growth in the length of the national highways in the last 7 years of the NDA government is a monumental achievement.
the figures went up from 91,287 kilometers to 1,37,625 kilometers. Going further, INR 3.32 lakh crore is allotted for 22 greenfield expressways, initiated by the bridge building messiah, as he is fondly referred to. Bharatmala and Sagarmala, two world-class access-controlled expressway projects led by Nitin Gadkari, are presently in various stages of construction. The Bharatmala project seeks to eliminate the perennial road traffic movement imbroglio across the country. With Nitin Gadkari taking charge, India's much maligned logistics sector has also metamorphosed from a point-to-point model to a hub-and-spoke model. This multimodal transport system integrates railways, highways, inland waterways, and airports, conjuring a highly effective transportation grid, substantially reducing logistic costs and pollution. 35 multimodal logistic parks, 50 economic corridors, 10 intermodal stations are being readied for the monumental effort. Logistics summits with the international participants, including government organizations and the World Bank, leading to MOUs worth 2 lakh crore, have been held to add muscle to the initiative. Among his other endeavors, unprecedented progress is evident in port industrialization, national water highway traffic, jetties for coastal tourism, Ganga Yamuna cleaning, fundraising, asset monetization project, toll operate transfer. As MSME Minister, he has gone all the way to promote entrepreneurship, helping rural youth to adopt Khadi as a means of self-employment. The MSME Ministry has also found wings under Mr. Gadkari. He changed the definition for classification of MSME. Now, a company investing 1 crore and earning a turnover of 5 crore will be classified as micro company. The portal Udyam Registration UR offers faceless, fully online, paperless and transparent MSME registration process, fully integrated with income tax and GSTN systems. His brainchild, Jal Kranti, Buldhana pattern of water conservation which changed economy of villages by rejuvenating water bodies, has won a global award. Mr. Gadkari introduced the first ever vehicle scrapping policy, which proved to be the fight against pollution and in the interest of road and vehicle safety. New FASTag policy is helping commuters to save their fuel and time on toll plazas. Some of his major work, like unprecedented push for research and development in electric vehicles, leading research and development for usage of waste materials in highway construction to cut down highway construction costs and generate wealth out of waste materials, developing ropeways and funicular railways in the remotest parts of the country, thus boosting tourism. Panchgaon project for women of making carpets from scrap cloth is a classic example of women empowerment. Khadi Prakritik paint, which is made from cow dung, is aiding in employment in rural areas and have exponentially improved rural economy. When all industries were shut in the pandemic, Mr. Gadkari empathized with people by conducting webinars and 800 plus video conferences. His quick decision making in procuring oxygen PPE kits helped those affected by the deadly virus. He generously donated ambulances to NGOs, helped to set up oxygen plants, factory to make remdesivir injections and injections for mucormycosis. Thus, by showcasing strong leadership and taking quick decisions, he handled the COVID situation effectively. His affable nature goes beyond everyday personal equations as he continues to transmit his radiance and ideas to every individual or organization with his unmatched zeal. Gifted with an ability to dream the seemingly impossible dreams and getting them to fruition also defines this clairvoyant visionary. Nitin Gadkari shines on as one of modern India's pioneering leaders and his work a template for the coming generations. If there ever was the infrastructure man of India, he would answer to the name Nitin Jairam Gadkari. That showcase the untiring efforts taken by Gadkari ji to leverage the pace of the nation on the path of progress. This calls for a resounding of claps. महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र सरकार में मेरी सहयोगी मीनाक्षी जी, हमारे सीआई के चेयरमैन आदरणीय संजीव बजाज, श्री चंद्रजीत बैनर्जी, श्री राजन नवानी जी, उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, इसी बात के लिए आप सबके सहयोग लेकर आगे बढ़ने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सबसे पहले मैं एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नई सरकार को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। मैंने उनको यही कहा था कि अमृत महोत्सव के निमित्त हमने आपको ऐसा अमृत पिला दिया है कि आपको अब अमरत्व प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र और प्रगति और विकास की ओर आगे जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग पूरी ताकत और शक्ति के साथ महाराष्ट्र को सहयोग करेंगे, ये विश्वास उनको देता हूँ। वैसे महाराष्ट्र एक ग्रोथ इंजन है और मुंबई जो है वो हमारे देश की एक प्रकार से इकोनॉमिक कैपिटल है और $5 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बनानी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई और महाराष्ट्र के बिना वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश में महाराष्ट्र का हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उससे 22 से 24% जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से होता है। सर्विस सेक्टर में हमारे जीडीपी में जो 52 से 54% कंट्रीब्यूशन है, उसमें भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का है। और विशेष रूप से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो बढ़ाना हमारे लिए सबसे आवश्यक है और जिसके लिए महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, और वो भी आज 12% है और जो हम चाहते कि हम 20% तक ले जाएं, वो भी भारत में अगर सबसे प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है। और उसको और गति देने का जो संकल्प एकनाथ जी और देवेंद्र जी ने व्यक्त किया है, उससे निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत सहयोग प्राप्त होगा। मैं विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा कि देवेंद्र जी ने समृद्धि महामार्ग बनाया। एकनाथ जी उस समय एमएसआरडीसी के मंत्री थे और एमएसआरडीसी का मेरा इतना संबंध है कि एमएसआरडीसी का फाउंडर मैं हूँ। तो एमएसआरडीसी का मुझे याद है कि इसी हॉल में एमएसआरडीसी की स्थापना होने के बाद एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के अजीत गुलाबचंद जी भी उपस्थित थे। तो क्वेश्चन में उन्होंने मुझे पूछा था, तो मैंने बताया हम हाईवे बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे। तो उनको लगा नहीं कि हम बना पाएंगे। तो उन्होंने कहा आप कम से कम जो रोड है वो तो अच्छे बनाओ। पर आज एमएसआरडीसी ने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट हो, 55 फ्लाईओवर्स हो, एकनाथ जी इसका अपना एक रिकॉर्ड हुआ है। जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए उस समय धीरूभाई जी का आग्रह था, अंबानी जी का, जिसका लोवेस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए में था, मैं 97 की बात कर रहा हूँ, वो हाईवे एमएसआरडीसी ने उस समय का केवल 1650 करोड़ रुपए में बांधकर पूरा किया और रिकॉर्ड बना। जो फ्लाईओवर की कीमत, जो 55 फ्लाईओवर की कीमत 2000 करोड़ रुपए थी, वो एमएसआरडीसी ने केवल वो काम 950 करोड़ रुपए में किया। तो पहली बार एस्टिमेट कॉस्ट से कम पैसे में काम करके एमएसआरडीसी ने दिखाया। और देवेंद्र जी के नेतृत्व में आप जब मंत्री थे
तो आपने समृद्धि महामार्ग भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया। कल मैं गवर्नर साहब को लेकर मैं अकोला जा रहा था, तो फ्लाइट में मैं उनको समृद्धि महामार्ग दिखा रहा था, और सही में ये समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के इतिहास के लिए एक समृद्धि देगा, और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज महाराष्ट्र और प्रगति और विकास की ओर जा रहा है। और स्वाधीनता के 75 साल में मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आगे आने वाले 25 साल की विजन निश्चित रूप से बनेगी, जो महाराष्ट्र की तस्वीर को बदल तो देगी ही, केवल देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में निश्चित रूप से महाराष्ट्र आगे जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मैं आपसे आज इस निमित्त रिक्वेस्ट करूंगा कि हम दिल्ली से मुंबई हाईवे बना रहे हैं, और ये हाईवे लगभग 70% इसी साल दिसंबर में पूरा हो रहा है। 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है, और मेरा ड्रीम है कि नरीमन पॉइंट से यानी ताज होटल से दिल्ली में 12 घंटे में पहुंचना। और इसलिए ये जो हाईवे है इसमें एक ही अड़चन है कि हमारा हाईवे JNPT तक जा रहा है, और लगभग सब पैकेज में काम शुरू हो गया है। अब वर्ली बांद्रा जो है वो बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, तब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वर्ली बांद्रा को वसई विरार तक लेके जाऊं, पर फेज़ 1 बाद में हुई, बाद में हमारी सरकार चली गई, पर बाद में फेज़ 2 में बाद में वसई विरार तक ले जाने की बात नहीं हुई, अभी काम शुरू हुआ है। पर मैंने उसके लिए आगे 50,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा जो वर्ली बांद्रा को लिंक करने वाला नरीमन पॉइंट से लेकर, क्योंकि इधर आपने फिर ये कोस्टल रोड बनाया तो डायरेक्ट हम लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, तो 50,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाकर DPR बना के मैंने तैयार रखा है। मेरी 2-3 केवल कंडीशंस है कि वो जो GST लगेगा महाराष्ट्र का उसको मुझे माफ़ कर दो स्टील और सीमेंट का, और एग्रीगेंट और सीमेंट जो लगेगा उसको रॉयल्टी फ्री कर दो, और थोड़ा सा ब्रिज के बाजू में जो खाली लैंड पड़ी होगी वो दे दो। 50,000 करोड़ मैं लगा दूंगा और ये हाईवे बना दूंगा, तो ये मुंबई के लिए बहुत बड़ा होगा। इसमें नई मुंबई जो है वो काफ़ी बड़ी डेवलप होगी। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी हो रही है, कि अभी हम लोग पुणे से बेंगलोर हाईवे बना रहे हैं, पर बीच में उस समय के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मैं पुणे में हमारी मीटिंग हुई, अधिकारियों के साथ भी हुई, और अब उसको मैं मुंबई से बेंगलोर हाईवे बना रहा हूँ। ये जो वेस्टर्ली बाईपास है, जो टोल नाका आखिरी का है पुणे जाते समय खंडाला के बाद, लोनावाला के बाद, उसके बाद में वहीं से पुणे के रिंग रोड को जोड़कर पुणे से बेंगलोर केवल 3.5 घंटे में होगा, और 4.5 घंटे में हम मुंबई से बेंगलोर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 125-130 किलोमीटर के स्पीड से जा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसका भी भूमि पूजन अलाइनमेंट पक्की हो गई है, और ये भी आने वाले 2-3 महीने में इस कार्य की शुरुआत होगी। और दूसरा, पुणे से औरंगाबाद, ये नए रोड का भी हमने अलाइनमेंट पक्की कर दी है, और पुणे से औरंगाबाद संभाजीनगर 2 घंटे में होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि दोनों हाईवे के लिए आपके नेतृत्व में तुरंत लैंड एक्विजिशन के कार्य की शुभारंभ होकर अगर शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस हाईवे से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने नई मुंबई बनाई है, वैसा नया पुणे और नया औरंगाबाद बनाने का हाईवे के बाजू में एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि हाईवे बनने के बाद सब लोग ज़मीन खरीद लेते हैं। हम हाईवे बनाने के पहले महाराष्ट्र सरकार ज़मीन खरीदी करे, जिसके लिए मैं सहयोग करूंगा, और वहाँ नई टाउनशिप अगर आप बनाएंगे तो वो एक बहुत अच्छी तरह से औरंगाबाद के लिए, संभाजीनगर के लिए और पुणे के लिए भी बहुत बड़ा योगदान हुआ। एक अच्छी बात हुई है कि मुंबई और पुणे का पोल्यूशन जो है, जो ठाणे का है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हमारा पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा उत्तर का जो ट्रैफिक आता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये पूरा मुंबई आता है और मुंबई से पुणे जाता है, और पुणे से एक तरफ सोलापुर और एक तरफ कोल्हापुर जाता है साउथ जाने के लिए। पर अब हमने एक नया रोड बनाया जो सूरत से डायरेक्ट, सूरत से नासिक
और नासिक से अहमदनगर और अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से आगे एक तरफ वो हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, मैंगलोर तक पूरे तरह हमने हाईवे उधर मार्क किए हैं, तैयार किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो साउथ का ट्रैफिक है मुंबई और पुणे आने वाला है, इसमें 50% कम हो जाएगा। तो इसमें पुणे और मुंबई का पोल्यूशन भी काफ़ी कम होगा, ठाणे का बहुत कम होगा। और इसलिए ये भी आप इसके लिए ज़रूर प्राथमिकता दीजिए, जो आपके नेतृत्व में ये महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नागपुर से हैदराबाद का भी हाईवे बना रहे, जिसमें देवेंद्र जी का वो और मैं दोनों नागपुर के हैं, तो दोनों बैठकर उसमें का समाधान तो हम तुरंत पे काम शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में सबसे बड़े इम्पोर्टेंट है शुगर इंडस्ट्री, और महाराष्ट्र में आज जो कुछ समृद्धि आई है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा है, वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, अब विदर्भ में थोड़े प्रमाण पर शुगर इंडस्ट्री के कारण बहुत प्रगति हुई है। हमारे देश में टोटल 340 लाख टन शुगर जो तैयार होती है, उसमें 50% शुगर महाराष्ट्र में होती है। और इस साल शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, इसके नई समस्याएं खड़ी हुई है। तो मैक्सिमम शुगर का कन्वर्शन इथेनॉल में करने की दो नीतियों को भारत सरकार ने अनुमति दी, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा महाराष्ट्र को हो रहा है। और इसलिए ये जो इथेनॉल है, अभी हमने पेट्रोल में तो 20% डालने का निर्णय किया, फिर भी हमें बहुत शॉर्ट सप्लाई है, 10% अभी पूरा हुआ है। पर अभी हमने एक नया निर्णय हुआ है कि मैं एक बार पढ़ते पढ़ते रशियन साइंटिस्ट, उन्होंने एक प्रयोग किया कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो उस समय ये देखकर मुझे लगा कि ये हमने करना चाहिए, तो मैं रशियन साइंटिस्ट को मैंने इंडिया में बुलाया और उनका प्रेजेंटेशन लेने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है। तो इंडियन ऑयल के जो चेयरमैन है मिस्टर वैद्य, उनको और राम कुमार करके रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर है, उनको दोनों को बुलाकर उसका प्रेजेंटेशन दिया। तो राम कुमार जी ने मुझे कहा कि ये मुझे कठिन लगता है सर। मैंने बोला ट्राई करके देखिए, और उनने 3 महीने ट्रायल दी फरीदाबाद में। अब उन्होंने मुझे सर्टिफाई करके लेटर मुझे और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को दिया है कि ये इससे इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर होगी, यानी इथेनॉल का एवरेज जितना मिलेगा उतना ही पेट्रोल का एवरेज मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अगले महीने से आ रही है। इसमें से टोयोटो, हुंडई, सुजुकी, और ये ब्राज़ील, यूएसए और कनाडा में है। और वो जो गाड़ियाँ है, और बजाज की स्कूटर, 2 व्हीलर, टीवीएस की और हीरो की भी आई है, और ऑटो रिक्शा भी आई है। तो अब महाराष्ट्र से पेट्रोल को हद्दपार करिए। पेट्रोल 120 रुपये लीटर और इथेनॉल 62 रुपीज़ लीटर आएगा, कैलोरिक वैल्यू सेम होगी, तो ग्राहकों का भी फायदा होगा। मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि ई व्हीकल की बात मैं जब करता था तो लोग कहते थे कि होगा नहीं। अब मुंबई में ई बसेस आ गई, पूना में आ गई। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर हमारी भारतीय कंपनियों की, अब ये 9 महीने, साल भर उसकी वेटिंग लिस्ट है, इतने ई व्हीकल की डिमांड बढ़ी। अब ये स्कूटर आ गई, और हम 10 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, और इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन की भी शुरुआत हुई। और मेरे पास तो हाइड्रोजन की गाड़ी है, मर्सिडीज से भी अच्छी है, हवा भी कोई धुआं भी नहीं निकलता और आवाज़ भी नहीं आता। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज़ अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और गवर्नमेंट ने अभी 3000 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है, हाइड्रोजन मिशन। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र ये प्रगतिशील है, ये जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी फ्यूल, फर्टिलाइज़र और विशेष रूप से ये इसी के पीछे घूम रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज फ्यूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या है, जिसका आप जीएसटी कम करने की बात कर रहे हैं, वो तो ज़रूर करिए, पर जीएसटी से अपनी फ्यूल तैयार होगी। अभी महाराष्ट्र में देवेंद्र जी, मैंने 2 प्लांट का इनॉग्रेशन किया कि एक पूना में बायो सीएनजी बनाया उन्होंने, जो ट्रैक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो प्लांट है वो हमारे इसमें ठोमरे जी है, उन्होंने यवतमाल ज़िले में शुरू किया। और अब महाराष्ट्र में 10-12 प्लांट ऐसे हैं कि जो बायोमास से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बना रहे हैं। तो ये हमारे किसान इतने अच्छे हैं। तो
तो हम आने वाले समय में ये जो पूरा इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का पोल्यूशन करने वाला, इसमें महाराष्ट्र सबसे बड़ी भूमिका लेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा। मैं आपको और एक अनुरोध करूंगा कि अब रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे भी मेरे पास है। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब जगह बना रहा हूँ। 65 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, महाराष्ट्र में भी है कुछ। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी में ये ट्रॉली बस जो है जिसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है और इसलिए वो सस्ती भी है, तो ये अगर हम शुरू करेंगे, जो पूरा मुंबई में पुरानी ट्राम थी, तो ये टायर पे चलने वाली ये 2 बसेस जोड़ कर जाएगी, तो इससे कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। एग्जिस्टिंग डीजल बस के रेट जो टिकट के हैं वो 30% कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समुद्र में भी हम रोपवे, केबल कार का उपयोग कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं ये बीपी मंत्री था तो बीपीटी में मैंने अलीबाग जाने के लिए ये हमारा रो पैक्स शुरू किया और ये शुरू किया तो अब इतना गाड़ियाँ लेकर, बसेस लेकर लोग जाते हैं। मुझे अब देखने के लिए एक बार उसको जाना है, पर लोग बहुत खुश है उसके कारण। इसी प्रकार से नए मुंबई से लेकर और नए एयरपोर्ट को, शिंदे जी, मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार करके बीपीटी में रखा है कि हमारे मुंबई के किसी भी दिशा से 17 मिनट के अंदर हम पानी से, वाटर टैक्सी से नए मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, ठाणे से लेकर वसई विरार से लेकर तब। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट अगर हो जाएगा तो रोड पर का भी ट्रैफिक कम होगा। और इसलिए जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है, जिसमें आपने बहुत अच्छी इरिगेशन को प्रायोरिटी दी है, विशेष रूप से इरिगेशन, पानी, यही महाराष्ट्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमको इंटीग्रेटेड थिंकिंग करना पड़ेगा। वी नीड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, उसके सिवा नहीं होगा, बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड विदाउट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल वी कैनॉट इरेडिकेट द पॉवर्टी। और इसलिए निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हमको करनी पड़ेगी, पर उसके साथ साथ एग्रो एमएसएमई और एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल में भी हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। मैं संजीव बजाज जी मुझे मिलने के लिए आए थे तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सीआईआई में आप 2 प्रकार के चैप्टर खोलिए, एक एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हमारी एक देश में गांधी जी कहते थे कि हमारी 90% पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, अब 25% माइग्रेशन हुआ है और ये 25% माइग्रेशन हुआ है वो सब शहर में आए, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ के प्रॉब्लम्स बड़े हैं। तो सीआईआई की तरफ से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जब तक ये जो 65% पॉपुलेशन है, इनका जीडीपी ग्रोथ में केवल 12% कंट्रीब्यूशन है, और ये जो 12% कंट्रीब्यूशन है ये हमको अगर 20% तक ले जाना है तो सीआईआई के सपोर्ट के बिना ये नहीं होगा। और इसलिए निश्चित रूप से एनर्जी, सोलर एनर्जी, अल्टरनेटिव फ्यूल्स, बाकी तो हमारी स्टील इंडस्ट्री है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब में तो आप लोग इंटरेस्ट लेते ही है और इसमें बहुत अच्छा काम भी करते हैं। पर मैं आपको स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि सीआईआई इस समय आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, इसको पूरा करने में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, इसमें बहुत पोटेंशियल है। हमारा ताड़ोबा है, कभी आप बहुत से लोग मुंबई में रोज़ हवाई जहाज में आते हैं। यहाँ के एक गायक आए थे नागपुर में, तो मैंने उनको भेजा ताड़ोबा, तो एक दिन में उन्होंने 9 टाइगर देखे। यानी फॉरेस्ट इतना अच्छा है कि फॉरेस्ट में टूरिज्म इतना अच्छा डेवलप हो सकता है और ऑलरेडी हो रहा है। तो आप ये रूरल, ट्राइबल, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट बेस में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ठाणे जिले का ये जो ट्राइबल एरिया है, इसमें ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए सीआईआई का विशेष इनिशिएटिव होगा, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए रहे, पानी हमारे लिए उपलब्ध कर ही रहे, और अच्छी अच्छी योजनाएं। देवेंद्र जी जब थे तो मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, तो मैंने 6000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को दिए उस समय, जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े थे उसको पूरा करने के लिए। और मैं एकनाथ जी, आपको और देवेंद्र जी को अनुरोध करूंगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी सिंचाई को दो, इरिगेशन को दो, पानी को दो। हमारे पूरा सह्याद्री के पठार को पूरा पानी समुद्र में जा रहा है, उसको रोककर अगर आपने गोदावरी में लाया तो पूरे डैम मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र के पूरे भरे रहेंगे।
तो आपका विशेष रूप से ध्यान इस बात की तरफ है, और इसलिए एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में सीआईआई और बाकी ऑर्गेनाइजेशन की सहयोग से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल से लेकर बाकी बहुत सी क्रॉप पैटर्न बदलने में काफ़ी आपने इंटरेस्ट लिया है। तो मुझे विश्वास है कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री के जी का है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और आज हमारा देश ऐसा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग पावर, मैन पावर हमारे देश में है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। इसमें महाराष्ट्र सबसे अग्रेसर है, और वेस्ट टू वेल्थ में भी महाराष्ट्र अग्रेसर है। आप देश को मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, और इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने जो 75 साल हमारे देश को पूरे हुए हैं, इस 8 साल में हमने सभी क्षेत्रों में काम किया है। बहुत बड़ा उसका किताबें लिखी जा सकती है, प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। इस 8 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा। इसके पहले क्या हुआ इसका मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, यही हमारी समस्या थी। और इसलिए आज हमारे देश की कहानी बन गई रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। But this is the appropriate time for the country that with appropriate leadership and appropriate vision, we can make miracles. We can make Indian economy #1 economy in the world. We are the fastest growing economy in the world. और ये उद्योग क्षेत्र के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। उद्योग, एग्रीकल्चर दोनों में भी हमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। और मैं अक्सर इस बात को कहते रहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और आने वाले समय में महाराष्ट्र में निश्चित रूप से ये जो 75 साल पूरे हुए, जो अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, इस 75 साल में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और भारत सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का पूरा सपोर्ट लेकर आने वाले समय में इंडस्ट्री, ऐसे एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, टूरिज़्म, इन सब सेक्टर में बहुत बड़ी प्रगति होगी। और सीआईआई में विशेष रूप से संजीव जी से अनुरोध करूँगा कि एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल के बारे में भी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इनोवेशन भी चाहिए, रिसर्च भी चाहिए, और उसके साथ सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस भी चाहिए। और मैं विश्वास रखता हूँ कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग बायो सीएनजी बना सकते हैं, एलएनजी बना सकते हैं, इथेनॉल की इकोनॉमी बना सकते हैं। एवरीथिंग इज़ प्रूवन। मैं मानता हूँ कि प्रूवन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इफेक्टिव मार्केटिंग और इकोनॉमिक वायबिलिटी, और इसमें आप जैसे लोग निश्चित रूप से एक नई दिशा दे सकते हैं। और राज्य सरकार का सहयोग, आपका सहयोग और भारत सरकार की समर्थन से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। मैं आज फिर से एक बार एकनाथ जी को और देवेंद्र जी को, पहला ही कार्यक्रम उनका था और हमने उनका ऐसा अमृत पिला दिया है कि अब मुझे नहीं लगता कि उनकी गाड़ी कहीं रुक पाएगी, और बहुत गति से, तेज़ी से, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड से महाराष्ट्र के विकास की यात्रा और आगे जाएगी। और सीआईआई से लेकर आप सब लोगों का, इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मैं इस कार्यक्रम के लिए सीआईआई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मीनाक्षी जी को धन्यवाद लेता हूं कि उनके विभाग की ओर से उन्होंने विशेष रूप से आज इस अमृत महोत्सव के निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। देश को प्रगति पथ पर गतिमान रखने में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है। हम दिल की गहराइयों से आपके सदा ऋणी रहेंगे। Ladies and gentlemen, time now to present the vote of thanks, and I will request Mr. Rajan Navani, Chairman CII Council on India at 75. Our Honorable Chief Guest, Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji, our guests of honor, Shri Eknath Shinde ji, the Honorable Chief Minister, Government of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, the Honorable Deputy Chief Minister, Government of Maharashtra, Honorable Minister Srimati Meenakshi Lekhi ji, President CII, Mr. Sanjeev Bajaj, Director General Chandrajit Banerjee, ladies and gentlemen.
distinguished guests, I don't think we could have asked for a better session today on making the Sankalp for the Amrit Kal on our journey towards India at 100. Because all the things that came up today in this conversation, I think if we were to put it down, are such ambitious Sankalps for all of us to make, but so achievable if we can all come together. And I think the success of this event is really about India at 75 Foundation, CII, Ministry of Culture, government, center, state, all stakeholders coming together, business, industry, large scale, small scale, coming together to really take a Sankalp that we will achieve an inclusive, developed India by India at 100. और जो मैंने सुना है और जिस तरह से बातें हुई हैं, I think, the road to riches path is not road from riches, which is the only aspect, but so many things of fast tracking with ethanol, bullet trains, the ability to take India to a position of leadership in the world is so truly achievable. And I think it takes me back to the 2008 time in CII, जब हमने मिलके discuss किया था, and I know Ministry of Culture that time was leading the effort in New York, and with CII we took a vow to see how we can build the future of India at 75. Tab we had taken, CII had gone out with young Indians and many stakeholders in society to really find what connects people in India and match the aspirations of people in India to what the future they would like to see. So like from the need for freedom connected Indians in the 1940s, the need for a better livelihood connected Indians at that time. And I still remember amongst the many discussions that were there, and I think Mr. Chandrajit Banerjee did mention, when we met the Honorable Chief Minister of Gujarat then and our Honorable Prime Minister of India today, we had a 45-minute meeting session. That meeting lasted nearly 3 hours. Professor C.K. Prahlad that year was one of the inspiring people for this vision. He was rated the world's #1 thinker. And I still remember when we entered that meeting, the Honorable Prime Minister said, दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भारतीय हैं और इसका हमको गर्व होना चाहिए, वो हमसे मिलने आए हैं, हमको we have to discuss, we have to see how we can articulate and build the India of the future together. And that discussion that lasted ended with, I think, a Sankalp where he said, Delhi aayenge to karenge. And nobody understood the meaning at that time, but when we did, you saw the government come in 2014, the ambitious New India of 2022 aspects that were set up were part of that entire process. And I think the entire thing from here is about building together a path for India at 100. How do we really come together to not only celebrate what we have achieved, but to really take a resolve to build a new India together? I think as we embark on this journey now for a visioning exercise for India at 100, we are reliving all the moments of a cultural history of India that is thousands of years old, an independent history that's 75 years old, but definitely a path to leadership as we move forward. So I would really like to take this opportunity to really thank Shri Nitin Gadkari ji. I would like to definitely thank our Honorable Chief Minister Shri Eknath Shinde ji and Shri Devendra Fadnavis ji for all your inputs, your words, your guidance, and for this being the first meeting, as you all have said, of this entire journey towards Amrit Kal, towards the India at 100. And I really think that there is an opportunity for us to build diversity, to really bring in an outlook that will not only take India to 75, from 75 to India at 100, but even beyond. On behalf of CII, on behalf of India at 75 Foundation, on behalf of the Ministry of Culture and under the aegis of Amrit Mahotsav Foundation, I really thank all of you for being here and for gracing this inaugural session. Thank you. Thank you for those highly uplifting words. And now we will present mementos to express our gratitude. I will request Mr. Sanjeev Bajaj, President CII, to please present a memento to our chief guest, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister of Road Transport and Highways, Government of India.
I will request Mr. Bajaj yet one more time to please present a memento to our guest of honor, Shri Eknath Shindeji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, a token of appreciation for you, sir. Thank you. I will now request Shri Chandrajit Banerjee to please present a memento to our guest of honor, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra. Please accept this as a token of respect and love. Thank you. I will now request Mr. Rajan Navani, Chairman, CII Council on India at 75, to please present a memento to our guest of honor, Srimati Meenakshi Lekhi ji, Honorable Minister of State for External Affairs and Culture, Government of India. Thank you, ma'am, for accepting this. Ladies and gentlemen, on that note, we conclude the inaugural session, but do remain seated. We will commence the next session immediately. Just give us a couple of minutes for the changeover. Please note, we are not breaking now. Come back to your seats. The panelists for this session, Mr. Sriram Narayanan, Managing Director, Resourcer, Mr. J.P. Govindarajan, Managing Director, Garrett Advancing Motion India, Mr. Kannan Chakravarti, Chief Executive Officer, Mahindra Mobility, and the moderator is here, Mr. Ninad Karpe, Partner, 100X VC. So is Madam Gitika Kamli, Managing Partner, Future Factory LLP. So the panelists and the moderator all are here. Can I request all those behind? We will make this a short and quick session. We all are aware about the time. So can I request one and all to please settle down quickly?